Hello, everyone. Welcome to my channel, Leader in Making, the platform for your career coaching, career aspirations, and most importantly, unleashing your potential, your leader within to lead your life. And today I'm extremely happy because I'm here to welcome Mr. Abhishek Shekhar Raj, the person who has done BSc, has traveled in all his career journey, doing job at DXC, and now doing a course from IIT Patna, and you all were very keen to have more information. I was getting so many messages कि मैम प्लीज IIT पटना पे एग्जीक्यूटिव MBA पे हमें वीडियोस चाहिए, we want to know the procedure. So I thought who better than Mr. Abhishek. We want to thank you on behalf of Leader in Making for being so supportive for this initiative. और आप स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आगे आए, उसके लिए मेरा भी पर्सनल थैंक्स आपको अभिषेक. आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप बताएं स्टूडेंट्स को कि बीएससी के बाद कैसी रही आपकी एजुकेशन जर्नी, और आपने जॉब करी और उसके बाद क्या सोच के आपने आईआईटी पटना में इस प्रोग्राम को चूज किया. ओवर टू यू प्लीज. Yeah, thank you so much, ma'am, for this opportunity first. And yeah, वेलकम. I will start what I did after BSc. So मैंने BSc इन कॉलेज से ही स्टार्ट किया था. इन कॉलेज पटना में ही है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने BSc किया. उसके बाद DXC टेक्नोलॉजी में मैं एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया. Okay. So there I have responsibility around managing servers infrastructure for multiple clients as well as user administration. Okay. So this was my initial job role. Mm-hmm. But after my work, so they were quite impressed and they given me promotion. And then I joined as became delivery lead for user access management team. अच्छा. So once I became delivery lead, that was the exact point when I realized MBA could be the right decision for me, as Mm-hmm. already I have some technical skills. So Sure. leveraging it with the management skills or leadership skill, it Mm-hmm. will be very helpful for me for my long-term journey or long-time career Okay. advancement. Okay. Okay. सो बेसिकली Yeah, जब आपको so डिलीवरी मैनेजर का रोल मिला, तो इसके अंदर आपके yeah, पास टीम भी है लीड करने के लिए? yes, ma'am. So the team actually does user access management tasks, so which ओके. could be a different kind of work. And my actual responsibility there lies between managing the team, taking care of everything that delivery will not be impacted, everything will be in smooth motion, client will be happy, and that too we are supporting multiple clients. So that managing the team and dividing the tasks and managing multiple clients, they're exactly where management comes into place. ठीक है, ठीक है. तो बीएससी के बाद जब आपने जॉब करी, उसके बाद जब आपको टीम मैनेजमेंट की एक रोल की अपॉर्चुनिटी मिली, तो तब आपको लगा कि आपको एमबीए प्रोग्राम करना चाहिए. सो बीएससी Yes, आपने yes. लास्ट कब फिनिश करा था अपना यूजी प्रोग्राम? 2020 में एक्चुअली वो खत्म होना था, बट आपको याद होगा उसी समय कोविड का इम्पैक्ट जी. आया था, तो कॉलेज एग्जाम थोड़े डिले हुए. तो 2021 के फेब में मेरा बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हुआ था एक्चुअल में. अच्छा, सो 21 में आपने खत्म किया और रफली 2-3 साल फिर आपने जॉब करी. सो वुड यू लाइक टू टेल कि हाँ. ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के बाद, किसी भी टाइप का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कहीं से भी आके 2-3 साल काम करने के बाद फिर ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले? एग्जैक्टली, दिस इज द इनिशियली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आफ्टर बीएससी ओनली आई शुड गो फॉर एमबीए लाइक ओके. दैट. मेरा भी एक माइंडसेट वैसा चल रहा था, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले जॉब कर लेना चाहिए, बिकॉज हैविंग एक्चुअल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट और हैविंग एक्चुअल नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट and then doing MBA will something very worthful of it, because you श्योर. will have already experience, you will have a knowledge about what is going on, how actually a team works. So initially, as I joined as system engineer, I used to see how my delivery leads or my manager used to work, how they delegate tasks. So exactly that was very big learning for it. So श्योर. I believe that's the perfect time. So according to me, 2 year of having experience will be perfect to start for the MBA. ओके. ओके, तो कैसा रहा प्रोसेस, आपने कैसे अप्रोच किया, इस बारे में प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कुछ.
या सो एक बार मैंने जब सोच लिया कि अब मुझे एमबीए करना है, तो आई वाज लुकिंग फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की कैसे, और दूसरे मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे जॉब नहीं अभी छोड़ना है, ओके, तो रेगुलर ओके, एमबीए तो आई वाज नॉट लुकिंग फॉर इट। तो श्योर, मेरे पास एक बैक ऑफ द माइंड था कि एग्जीक्यूटिव एमबीए ही देखना है। अब ओके, एग्जीक्यूटिव एमबीए जब मैं देखने आया तो ऑप्शंस तो आपको भी पता, आजकल तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। जी, बट जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और उन सब का मैंने देखा कि क्या फीस स्ट्रक्चर और एजुकेशन, वो सब और फीडबैक्स वो सब देखे, तो एक एवरेज प्राइस जो मेरे सामने आ रहा था वो था अराउंड 8 to 12 lakhs, 8 to 15 lakhs, मतलब इस रेंज में एक्चुअल प्राइस मेरे आ सामने आ रहा रहा था। था जब जी, 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 जैसे हाँ आईआईएम के IIM। एग्जीक्यूटिव हैं या आईआईटी के और भी यस, प्रोग्राम्स हैं। जी, जी, यस, यस मैम, एग्जैक्टली। सो वहां पे इस रेंज का आ रहा था। फिर मैंने स्क्रॉलिंग के थ्रू पता चला कि आईआईटी पटना इज आल्सो प्रोवाइडिंग एमबीए, एंड दैट टू इन ओके, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, सो दैट एक्चुअली हिट्स मी। सो सिंस one of the more benefit, if you are from a technical background and doing MBA from a technical college, like IIT is a technical college, so that will also be a plus point for you, so like opportunities and all अच्छा, after ओके, MBA। ओके, Yeah. ओके, तो एक बार जब मैंने उसके बारे में देखा, तो उसके प्रोग्राम्स के बारे में कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया, फिर वहाँ के काउंसलर से थोड़े बात बात किए, तो फिर पता चला उस प्रोग्राम के बारे में एग्जैक्ट व्हाट इट इज। सो मैं आपको ब्रीफ में बता सकता हूँ कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। जी, प्लीज तो बताएं। so program is like it's a executive कम ऑनलाइन प्रोग्राम, बट ओके, यहाँ पे सारी जो भी क्लासेस हैं वो सारे ऑनलाइन होंगे, तो आपको कोई भी किसी भी टाइम पे कॉलेज में जाने का जरूरत नहीं है। बट अच्छा, हाउएवर वी आर प्रोवाइडेड विद द पास और द आईडी कार्ड। अगर आपको वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ की कोई भी सर्विसेज आपको यूज करनी है, तो आप अलाउड हैं विद द आईडी कार्ड कि आप जी, वो सर्विसेज यूज कर सकती हैं। जी, और तो वो तो अपॉर्चुनिटी रहता ही है, और सारी चीज ऑनलाइन है। और यहाँ पे एक और मेजर बेनिफिट भी आप बोल सकती हो कि ये भी है कि जब जो आपको फाइनल डिग्री आपके पास जो मिलने वाली है, उसमें जी, कहीं पे मेंशन एग्जीक्यूटिव या फिर ऑनलाइन नहीं रहेगा। वो एक सिंपल सी क्लियर एंड कट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री रहेगी। इट्स नॉट अबाउट कि इट्स ऑनलाइन एमबीए और इट्स एग्जीक्यूटिव एमबीए। ओके, सो दैट्स अ इट्स वेरी बिग नॉट, प्लस पॉइंट स्टूडेंट्स को। आई एम या श्योर हमारे जो स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स और लिसनर्स हैं, इवन वी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन आवर चैनल, आई एम श्योर दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज की जो डिग्री आपको मिलेगी, डिप्लोमा भी नहीं मिलेगा, आप कह रहे हैं डिग्री मिलेगी। या कंप्लीट ओके, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर्स इन और बिजनेस वो एडमिनिस्ट्रेशन, जी, जिसपे एग्जीक्यूटिव या ऑनलाइन नहीं मेंशन्ड है, बट क्लियर भी आपको मेंशन, एमबीए मेंशन है, दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। ओके, तो या क्लासेस इनकी एग्जैक्टली। एंड लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं या रिपीटेड होती हैं? क्लासेस कैसे होती हैं इनकी? सो हम लोगों को एक पोर्टल का सबसे पहले एक्सेस दिया गया आईआईटी पटना का। ओके, अब उस पोर्टल में सारे डिटेल्स आपके पास वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, लाइक क्लासेस डिटेल कब कब है। क्लासेस वैसे सारी ऑनलाइन ऑनलाइन बेसिस पे चलती है और लाइव होती है। अच्छा, तो लाइव होती है, बट ओके, अगेन, हाँ बट अगेन सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, इनके हिसाब से कुछ मिस हो गया श्योर, तो आप ओके, पीछे जाके उसको कर सकती हैं, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। बट सारे क्लासेस लाइव चलती है, और क्लासेस 4 days इन अ वीक होती हैं। तो अच्छा, वेंसडे और फ्राइडे, या करेंटली आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर, सो इसमें अभी ऐसा चल रहा है कि वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सो वेंसडे को रात के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, दैट इज 3 hours। फ्राइडे को भी सेम, रात के 6 से सुबह के, सॉरी, रात के 9 बजे तक, अगेन 3 hours। और सैटरडे को 2 बजे से 5 बजे तक, और फिर 6 बजे से 9 बजे तक। सो और संडे को भी सेम, तो अराउंड 18 hour ऑफ क्लास पर वीक वो लोग लाइव क्लास लेते हैं। एंड ऑल प्रोफेसर आर फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएम्स, वंडरफुल। तो जो जो कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, वो आई एम श्योर 80% या 70% क्राउड जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स का रहता है। तो या अटेंडेंस का यस, इसमें यस। कोई कंसर्न है या मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें क्राइटेरिया कुछ रहता है? सो अटेंडेंस इज अगेन 75%, बट हाउ इट वर्क्स कि अगर आप इन लेट से आप आज के 6 से जो 9 वाला क्लास है आप नहीं कर सकती हैं, ओके, आपने नहीं किया, बट अगेन टुमारो अगर आप वही सेम लिंक पे जाके अच्छा, पोर्टल से जाके, और अगर आप वो देख लेती हैं आप पूरा वीडियो, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, तो उसमें ओके, कोई तो इशू इसमें नहीं है। काफी इट्स जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कि और आप, कन्वीनियंस है। हाँ कन्वीनियंस तो है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, 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 अल्टीमेटली इट्स जस्ट अबाउट यू कि यू आर डूइंग इट और नॉट।
ओके ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आप प्लीज वो, आई विल जस्ट गो लिटिल बैक इनटू व्हाट यू वर शेयरिंग, कि आपने जब डिसाइड किया, फिर आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे जहां पर फीस में डिफरेंस बहुत आया, तो आईआईटी या पटना में विजाविस जो दूसरे प्रोग्राम है जिनकी 8, 10, 12, 15 लाख भी फीस है किसी किसी की, मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो कुछ प्रोग्राम्स की फीस 22 और 24 भी है। तो आईआईटी पटना में कितनी फीस थी, और उसके लिए फिर जब आपने फाइनल किया तो क्या फीस ही मेन क्राइटेरिया था या और भी कोई मेन क्राइटेरिया था? वन ऑफ द क्राइटेरिया फीस भी था, नो डाउट, बिकॉज आईआईटी पटना की फीस अराउंड 2,13,000 30,000 के अराउंड है। पूरे कोर्स की? That is for 2 years. Yeah, that is ओह, for दैट्स अ 2 years. वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल प्राइस। ओके। Yes, हाँ हाँ। yes. So that was one of the major criteria. Again, apart from that, the kind of program they are providing, the flexibility they are providing, it's kind of rare. Because मैंने IIMs में भी पता किया, तो they were asking कि आपको वीकेंड में मोस्टली आपको आना पड़ेगा क्लास करने वीकेंड्स ओके में। या नॉट ऑल, आई विल नॉट से कि ऑल IIMs में, बट जिसमें मैंने पता किया मेजोरिटी मुझे ऐसा ही दिख रहा था कि वीकेंड्स में क्लास में आना पड़ेगा एक्सेट्रा। और डिग्री में भी जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो आपको डिग्री मिलेगी वो एक एग्जीक्यूटिव करके मिलेगी। और तीसरे क्राइटेरिया कि वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई गेस 3 इयर्स थी, वर्क 3 ईयर जॉब एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना चाहिए। या बट अच्छा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया इन लोगों ने नहीं दिया था कि इतना होना मिनिमम है। एंड दैट टू बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू प्रोग्राम बाय आईआईटी पटना की। ये वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है कि अभी इन लोगों ने ज्यादा क्राइटेरिया रखना स्टार्ट नहीं किया, बट इन फ्यूचर में भी आगे चल के रख भी सकते हैं, बट अभी तो बहुत सॉर्टेड है। तो कितने साल पुराना कोर्स है ये? और जब आप कह रहे हैं न्यूली लॉन्च है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना पुराना कोर्स है ये? आई गेस 1 ईयर, 1 साल पुराना होगा मेरे। आई एम द सेकेंड बैच ऑफ ओके सेकेंड और थर्ड बैच अराउंड ओके ओके। इस तो ये कोर्स के दो लिए। साल का प्रोग्राम है, या इट्स अ और टू इसमें ईयर फिर चार प्रोग्राम कंप्लीट। सेमेस्टर्स होंगे? यस यस मैम, 4 सेमेस्टर। तो जब आपने इस बैच में एंट्री ली है तो आपका जो कंपोनेंट है, बैच का जो बैच साइज है वो कितना है, और उसमें क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? और या तो अगेन आपका आपने जो बोला था कि अराउंड 80% और 90% वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं अच्छा। बैच में। और बैच अराउंड 250 से 270 के अराउंड स्टूडेंट्स कंप्लीटली इसमें तो है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर वन पर्टिकुलर या प्रोग्राम। तो अगर आप एमबीए या कर रहे हैं और 250 बच्चे हैं, और दैट टू 70 to 80% वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आई थिंक दिस शोज दैट दिस इज यस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इनिशियली राइट नाउ। या तो इसको करने के एंड बाद जो आपका, तो अभी अभी आपने जैसे बताया था आपने एडमिशन लिया टीम को, तो आपने, ये एक जनरल एमबीए है, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आप क्या सोच रहे हैं वो जरूर आप प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। या सो अगेन इट्स अ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कोर्स। सो ओके कोर्सेस उसी तरह, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सारे चीज पढ़ने हैं जैसे एज अ जनरल एमबीए में आपको पढ़ना होता है। और ओके। सारे सब्जेक्ट्स जैसे पढ़ना रहता है। सेकेंड ईयर में आपको जाके दो स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है। एक हो गया माइनर और दूसरा हो गया मेजर। ओके ओके। तो मेजर्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको 1 मिनट बता भी सकता हूँ। प्लीज बताएं आप जी, क्योंकि आई एम श्योर स्टूडेंट्स तो देखिए मेजर और माइनर अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पर यस या अपनी ग्रेजुएशन के बिहाफ पर भी लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक इनपुट जरूर देना चाहूंगी कि आप जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहें सेकेंड ईयर में, उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप कर लें, अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है तो। और अगर वो बैकग्राउंड आपका है, सो आई थिंक देन यू विल बी सॉर्टेड इन योर माइंड कि हाँ, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मार्केटिंग से है, एचआर से है, ओके आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू चूज माई स्पेशलाइजेशन इन टू द सेकेंड ईयर। बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट that okay whether I will be successful in this specialization or not, it is highly recommended कि आप फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप, जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करना चाहें उस पर जरूर आप कर लें। क्योंकि जब आप वर्किंग इनसाइट्स लेके वो स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उसकी समझ आपको बहुत ही डिफरेंट होगी, and you will be absolutely clear that yes you really want to go for this particular specialization. Because I have seen Abhishek in lot of my in my career span of 23 years कि स्टूडेंट्स लेने के लिए तो स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, आईटी ले लेते हैं, एआई ले लेते हैं, फाइनेंस ले लेते हैं, मार्केटिंग, एचआर, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है तो कई बार बिना प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करे जब वो डायरेक्टली चले आते हैं और जब वर्किंग उनके सामने आती है
तो then they try to shift and try to do any other executive program. So please आप अपना thought yes, भी yes. बताएं और बताएं कौन से major और minor specializations हैं. यस यस डेफिनेटली मैम। और इस आपके पॉइंट में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी. कि फर्स्ट ईयर में एक उन्होंने स्पेशल पेपर रखा है दैट कॉल्ड माइनर प्रोजेक्ट फर्स्ट Okay. ईयर में। सो उसमें आपके पास अराउंड 30-40 टॉपिक्स होते हैं विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल दी स्पेशलाइजेशन। सो Okay. आपको Okay. टॉपिक सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट उसमें बनाना होता है। तो जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं और आपको आपके बैक ऑफ द माइंड फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस है, और आप कोई प्रोजेक्ट डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वहां पे भी आप आइडिया क्लियर हो जाएगा कि या इज इट वर्थ और इट इज समथिंग विच आई बिलोंग्स और इट इज कप ऑफ माई टी, माई कप ऑफ टी काइंड ऑफ थिंग। सो जी जी जी. या वो भी एक Sure. रहता है। So specializations are like human resource, second Okay. है marketing, थर्ड है हम्म. फाइनेंस, और फोर्थ है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये हो गया जो कोर सारे में रहते हैं। Okay. इनके Okay. अलावा आपको इंटरनेशनल बिजनेस, एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, Okay. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, Okay. रिटेल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। ये Okay. सारे स्पेशलाइजेशन है। इनमें से आप मेजर एंड माइनर आप सेलेक्ट कर सकते हो, Okay. आपको कौन सा मेजर रखना है कौन सा माइनर। तो आप कौन सा सोच रहे हैं लेने के लिए सेकेंड ईयर में? एंड या सो मेरा जैसे रिलेवेंट आईटी से ही है, तो आईटी जी. एंड फिनटेक मेरा रहेगा डिक्लाइन उस तरफ क्योंकि इट्स काइंड ऑफ रिलेवेंट टू माय करियर आल्सो एंड इट्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय जी फ्यूचर आल्सो। जी जी. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जब भी कोई स्टूडेंट इन्वेस्ट करता है किसी प्रोग्राम में तो वो आरओआई उस प्रोग्राम का जरूर देखता है. बट बीइंग दी यस फीस, यस यू नो, सच अ रीजनेबल फीस एंड दैट टू सच अ बिग ब्रांड ऑफ आईआईटी पटना, आई थिंक वो या आरओआई तो उसके ब्रांड नेम से ही कवर हो जाता है. फिर भी आप या हमारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। को बताएं कि क्या यहाँ पर एलुमनाई इंटरेक्शन है और प्लेसमेंट्स का कोई सपोर्ट है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई सेल है, उस बारे में प्लीज जरूर गाइड करें. या सो प्लेसमेंट के लिए एक सेल तो बना है वैसा, और प्लेसमेंट सपोर्ट काउंसलर ने स्टार्टिंग में क्लियरली बताया था कि ये प्लेसमेंट सपोर्ट सभी को मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर करियर लेवल। लेट्स से आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। सो एक एक बैच है वहाँ पे 10 का जिसके पास ऑलमोस्ट सबके पास 10 year एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्पेशलाइज देखा जाएगा जिसका वर्क एक्सपीरियंस उतना हो। ऐसे ओवरऑल टू से, क्योंकि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एमबीए करने आ रहा है और कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऑलमोस्ट उसके पास 2 year एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। इवन इफ आई एम फ्रेशर and I'm doing started MBA just doing now, so after 2 year definitely even I have 2 year of experience। तो एक ब्रैकेट जो 2 से 8 years के आसपास का होता है, उसके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड ओके बाय ओके. तो विल बी मतलब प्रोवाइडेड बाय आईआईटी। ब्रैकेट में कैंडिडेट्स डिवाइडेड हैं कि 2 से 8 हुए, फिर 8 से अबव का अलग यस ब्रैकेट होगा, बिकॉज या सैलरीज उस हिसाब से होंगी और जॉब रोल्स हाँ उस हिसाब हाँ से होंगी. सो जॉब ये प्रोग्राम रोल्स या करने के बाद अभिषेक आपको क्या लगता है कि आपके एकेडमिक में और प्रोफेशनल फ्रंट पे कितना डिफरेंस आएगा, क्या फोर्स कर पा रहे हैं आप? या सो अभी तक का तो मैं आपको बता सकता हूँ जैसा जर्नी रहा है। तो जी. जो प्रोफेसर्स भी जो हैं, क्योंकि आईआईटी पटना के हैं या फिर आईआईएम काफी हाईली क्वालिफाइड है, तो वे श्योर. ऑफ टीचिंग, लाइक एक्सप्लेनिंग द टॉपिक्स एंड बीइंग इन प्रेजेंस, और वहाँ पे मतलब ऐसे पीयर के साथ आपको रहना है जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 years भी लोगों के हैं, वो लोग अपना इंसाइट्स दे रहे हैं। अगर कोई एचआर बैकग्राउंड से आ रहा है और सेम प्रोग्राम है, एचआर बैकग्राउंड से आ रहा है और पीपल मैनेजमेंट करके एक कोर्स है, जी सब्जेक्ट जी है, जी तो वो एचआर से जो आ रहा है डेफिनेटली वो एक अब रहेगा, मतलब उसका जो नॉलेज रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो वो जब जी अपना इंसाइट शेयर करता है तो वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है अबाउट एग्जीक्यूटिव एमबीए। जी अगेन जी एक कोई डेटा एनालिटिक्स फील्ड से आ रहा है और एक सब्जेक्ट है एनालिटिक्स फॉर मैनेजरियल्स रोल, जी जी तो अगर वो जो डेटा एनालिटिक्स आ रहा है वो अपना इंसाइट शेयर कर रहा है, तो वो पूरे टीम के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है इस केस में, और जहाँ पे आईआईटी का ब्रांड नेम है तो वो भी एक आपके बैक में बहुत ज्यादा बेनिफिट तो प्रोवाइड करता ही है। जी जी जी. तो जब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि ये 2 साल का प्रोग्राम है, सो रफली अराउंड 2026 यू विल बी एबल टू कंप्लीट.
तो साथ में जो आपका यस। पैरेलल जॉब चल रहा है उस फ्रंट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप उसी को कंटिन्यू करेंगे या आपको लगे कि मैं इसका जब तक ये प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं बीच में कोई और टीम लीडर काइंड ऑफ पोजीशन ले लेता हूँ? बिकॉज डीएक्सी अपने आप में इज अ वेरी established and a very good reputed organization, especially for people who are coming from, tech background or even for non-tech background. कंपनी एनालिसिस रोल्स बहुत अच्छी देती है, क्योंकि मैंने खुद इसमें 10 से 12 साल कैंपस प्लेसमेंट्स करी है। सो आपकी करियर स्टोरी एमबीए के साथ और एमबीए के बाद कैसी होने वाली है? या तो एज यू मेंशन कि ऐसे तो डीएक्सी के अंदर में भी करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं जी। कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड एज बीएससी मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी, और आफ्टर एमबीए आई कैन गो फॉर करियर प्रोग्रेशन इनसाइड डीएक्सी आल्सो। श्योर। बट अगर आउटसाइड अपॉर्चुनिटी भी थ्रू कॉलेज भी अगर मिलती है तो डेफिनेटली उसके लिए भी मैं जा सकता हूँ। और इन बिटवीन भी अगर वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है तो उसके लिए भी आई एम रेडी टू गो। ओके ओके। सो बीएससी बैकग्राउंड से आने के बाद आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट रहा था इस कोर्स को अडॉप्ट करना? या तो इजी तो डेफिनेटली नहीं था। इट वाज नहीं। क्वाइट, हाँ, थोड़े तो डिफिकल्ट था। ऐसा तो नहीं था, मतलब कप ऑफ टी वैसा तो नहीं था। आपको अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो और आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, डेफिनेटली आई यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट श्योर। एज कम्पेयर टू कॉमर्स बैकग्राउंड। सो हाँ जब हाँ। फाइनेंस की क्लासेस चलती थी तो सम टाइम इट्स हैपन कि चीजें सर के ऊपर जाने लगी। बट अगेन आज के टाइम पे लेक्चर्स अच्छे हैं और आपको सारे चीज ऑलमोस्ट यूट्यूब पे मिल जाता है। आप आपको बस टॉपिक खोजना है और आपको यूट्यूब पे वो चीज मिल जा रहा है। ऑनलाइन कंटेंट इतना सारा है कि आप चाहो तो आपको इजिली मिल सकता है। तो इन केस अगर कोई टॉपिक लगता है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आप समझ सकते हो, तो एफर्ट आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे। एक एक स्टूडेंट है जो कि फाइनेंस पढ़ते हुए 11th क्लास से आ रहा है, और एक है जो डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके फाइनेंस पढ़ा, तो थोड़ा तो डिफरेंस देयर होगा। इज अ मेजर डिफरेंस, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि फाइनेंस बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बीकॉम रहा है, बीकॉम ऑनर्स रहा है या या इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड रहा है, दे आर वेरी वेरी या कंफर्टेबल फॉर डूइंग एमबीए प्रोग्राम इन जनरल और ईदर ऑप्टिंग फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर। और यस वहीं अगर यस कोई यस। स्टूडेंट बीटेक करके आ रहा है या बीई करके आ रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए आगे डेटा हाँ स्ट्रक्चर हाँ। करना और एआई करना और ऑटोमेशन करना वो उसके लिए इजी हो जाता है। तो ये बहुत ही यस यस। इंपॉर्टेंट और नेचुरल बात है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा 10th ऑनवर्ड्स, 11 ट्वेल्थ में आपने यूजी में कौन सा कोर्स लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क अकॉर्डिंगली। तो आप हमारे यस स्टूडेंट्स को क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे जो आपने अपनी जर्नी से लिया, यूजी की जर्नी से आपने जॉब करी और उसके बाद अब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? सो व्हाट आर योर सजेशंस फॉर पीपल हु आर इन द सेम लीग ऑफ रफली अराउंड 20 to 25 years ऑफ एज? आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे चैनल पर? या सो फर्स्ट यही रहेगा कि अगर आप यूजी के बाद डायरेक्ट एमबीए के लिए जा रहे हो, दैट्स अ गुड ऑप्शन। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई खराबी है, लोग जा रहे हैं, बट बेटर ऑप्शन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप कुछ एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद अगर आप एमबीए के लिए जाते हो तो एमबीए इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल। अगर मैं बोलूँ कि बस लेक्चर देख के सब कुछ हो जाए ना, नहीं होता है। जब प्रोजेक्ट भी, मैं अपना फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें भी जब एनालिटिक्स की बारी आई, जब डेटा लेने की बारी आई, तो जब प्रैक्टिकलिटी में जब डेटा एक आना और एक थियोरेटिकल डेटा आना, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल, सो माय प्रोजेक्ट वाज बेसिकली ऑन रिसर्च ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग। जी जी। तो उसका जो डेटा था, तो वो प्रैक्टिकलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है किसी भी चीज के लिए। तो ओके। वो अगर आप वर्क करके आ रहे हो ना, तो बहुत बेटर है आपके लिए कि समझना और आगे बढ़ना। जी। तो इंटर्नशिप्स के लिए भी जैसा आपने कहा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो क्लियर है कि सपोर्ट है, पर इंटर्नशिप के लिए कोई हम्म। सपोर्ट है? और प्लेसमेंट्स के लिए जैसे इंटर्नशिप्स हुई, प्रोजेक्ट हुआ या फाइनल प्लेसमेंट्स हुई, क्या कुछ सेपरेट मॉड्यूल है प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए? अब प्लेसमेंट के लिए जरूर हो सकता है, बट अभी तो वैसा कुछ नहीं आया है हम लोगों के सामने। और ओके। इंटर्नशिप के लिए भी नहीं, अभी कुछ भी वैसा नहीं था, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। तो जी। मोस्ट ऑफ द मेरे बैचमेंट जो मुझे दिखे ना, वो जॉब करते हुए दिखे। तो कोई इंटर्नशिप के लिए तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं वो इंटर्नशिप तो पॉसिबल नहीं है ओके। करना। बट
इनसाइड आपके कंपनी में आप कोई प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, तो वो सब तो कर ही सकते हो। जी जी वरना एक्स्ट्रा आप जितना अपने से आप एफर्ट डाल सको। प्रोजेक्ट्स आई टोल्ड लाइक 30 to 40 टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्ट्स जी के लिए। जी जी दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो आपको अगर चाहें तो आप कितना भी उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप कितना उससे पुश कर सकते हैं। श्योर श्योर। एक चीज और फाइनली पूछना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट की क्वेरी हो सकती है कि अगर वो इस स्टैंड पॉइंट पे है कि उसने 2-3 साल जॉब कर लिया, सो यू नो देयर इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन इन द मार्केट एंड अक्रॉस एज ग्रुप्स, ये क्वेश्चन रहता ही है और हमेशा ही रहता है सिंस डिकेड्स कि फुल टाइम एमबीए ही करें जॉब छोड़कर, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, या फाइनली हमें एग्जीक्यूटिव ही करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है? या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। करियर ब्रेक लेना, करियर छोड़ के वापस अच्छा। से जाके एक रिस्क लेना, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज अगेन। अगर आप कैट क्लियर कर लेते हो और आईएम्स ये सब टीयर 1 कॉलेज मिल रहे तो डेफिनेटली इट्स वर्थ टू गो। श्योर श्योर। बट हाँ, बट अगर आप टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में आप अगर सेटल होना चाहते हो आप, और जो ऊपर से जॉब छोड़ के, सो दैट इज then in that case executive MBA is far better than tier 3 tier 4 and even some tier 2 colleges also, because हम्म। definitely you will have a brand name in your CV, in your LinkedIn you will have a IIT Patna written, so that will make a difference. What a beautiful advice to all my dear students and followers कि अगर आपको टीयर 3 और टीयर 4 से मिल रहा है, उससे बेटर है कि आप ब्रांड नेम, क्योंकि ब्रांड नेम रियली मैटर करता है आपके करियर में फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल यू मेक अ वेरी Yes. रॉबस्ट करियर जर्नी। और अगर आपको कैट क्लियर करने के बाद टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में मिलता है, आईआईटी में मिलता है, देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस लाइक 4 है, एमडीआई है, एफएमएस है, निम्स है, एसपी जैन है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आपको इन कॉलेजेस में मिलता है, जेवियर्स में मिलता है, एक्सएलआरआई में, तो आप जरूर जाइए अपनी जॉब को छोड़कर, जो कि अभिषेक कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको कैट स्कोर नहीं आप अपीयर कर रहे हैं, या आपका मनचाहा स्कोर आपको नहीं मिला, या आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला among the list of 10 to 12 colleges which we have just discussed and mentioned, the suggestion says that you must not compromise with the brand name. Don't go for tier 3 tier 4 colleges. Use the brand name of IIT Patna and make your successful career. Abhishek, I'm so very thankful for such a clear, crisp information in such short span of time, and my personal thanks to you once again for for helping us in such short duration. One last word from your side to my students. Yeah, just prepare well and go for it. MBA is really worth doing it. It will not only enhance you professionally, but for personally, for sure, it will enhance you. Like how to communicate, how to do different uh, things, how to manage those. You will be feel yourself uplifted in your personal journey also, apart from professional. Sure, sure. So we are highly thankful to you, Abhishek, once again, and we will be mentioning his complete name in the description box while we will be uploading this podcast, and you guys can definitely connect with him directly over LinkedIn. If you have any specific query related to Abhishek, you can still mention it on the podcast. If we feel that there is a common query and all of you wanted to have this answer from Abhishek, so we will request another piece of time from him. And should you need any extended support from Leader in Making, you all know that we are just a message or a call away from you. Abhishek, from the complete behalf of my team, I would like to thank you for helping us, for guiding us, and showing the path to all the followers and subscribers of our channel. Thank you so very Yeah, much. it was my pleasure, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you.